کتنا کمال کر دیا مودی جی نے. آئیں چلے اس پہ بات کرتے ہیں. لیٹس انڈرسٹینڈ کہ ایکچولی یہ کیا ہو رہا ہے. سینیٹر عرفان صدیقی ہمارے ساتھ ہیں. سینیٹر صاحب, پوری ایک ٹائم لائن ابھی ہم نے دکھا دی ہے کہ مودی کی جو obsession ہے with پاکستان, مطلب وی کین انڈرسٹینڈ کہ بڑی فرسٹریشن ہوئی ہوگی ان کو. انہوں نے جو ابھی جنگ جو ہاری ہے, منہ کی کھائی ہے, بڑے بڑے ان کے دعوے تھے, لیکن یہ آپ کو بیانات ان کے کہاں جاتے نظر آ رہے ہیں؟ اسپیشلی ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ انڈیا میں, بھارت میں, کیا وہ لوگ نہیں ہیں who can see through this dialogue کہ وہ ایکچولی یہ کیوں کر رہے ہیں؟ these are political dialogues. جی بہت شکریہ ہما اور عبداللہ. سب سے پہلے تو آپ کو یوم تکبیر کی مبارک. 27 سال پہلے ہم نے ایک ایسی قوت کا اظہار کیا تھا, اور وہ بھی بھارت کے رد عمل کے طور پہ کیا تھا, جس کے بعد سے ہم کم از کم ایک ایسی صورتحال میں ہیں کہ ہم بھارت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ سکتے ہیں, اور بھارت کو معلوم ہے کہ اگر وہ کوئی مہم جوئی کرے گا تو اس کا رد عمل کیا آئے گا. تو میں آپ کو اور آپ کے توسط سے پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. تو جہاں تک میں نے بڑی تفصیل سے دیکھا, بڑی اچھی ریسرچ کے ساتھ آپ نے چیزیں پیش کی ہیں, اور پوری ایک ٹائم لائن واقعی آپ نے دکھائی ہے. لیکن ٹائم لائن میں آپ دیکھیں کہ 11 سال سے یہ جو سفر ہے مودی صاحب کا, اس میں بھارت کو کس طرح سے زوال کا شکار چلا آ رہا ہے, ہر اعتبار سے, سماجی پہلو سے, معاشرتی حوالے سے, اقلیتوں کے حوالے سے, بنیادی حقوق کے حوالے سے, کشمیر کے حوالے سے. تو یہ 11 سالہ سفر دراصل بھارت کے انحطاط کا یعنی زوال کا سفر ہے, جس میں آپ کو منموہن سنگھ ہوں یا واجپئی ہوں, یا اس سے بھی پیچھے چلے جائیں تو نہرو والی جو ایک سائیکی تھی یا ایک حکمرانی کا طور اتوار تھا, وہ دکھائی نہیں دیتا. یہ شخص جو ہے, اس کے اندر کسی بڑے ملک کی رہنمائی کرنا, قیادت کرنا, حکومت کرنا سبھاؤں کے ساتھ اور اچھے انداز کے ساتھ, یہ اس کی سرشت میں نہیں ہے. اس کی جو اگر آپ تاریخ پڑھیں تو یہ شروع سے ہی ایسی جماعتوں سے یا ایسے گروہوں سے منسلک رہے ہیں. RSS کے یہ بہت نوجوانی میں ہی اس سے شامل ہو گئے تھے. تو اب یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں, یہ تو ہما اور عبداللہ ایک ہارے ہوئے شخص کی آواز ہے, اور ان کی وہ جو بھی کہیں, آپ ان کے چہرے پہ نگاہ ڈالیں اور ان کی جو بدن بولی ہے, جس کو باڈی لینگویج کا میں نے ترجمہ کیا ہوا ہے, وہ بدن بولی دیکھیں تو اس کے انگ انگ سے آپ کو ایک شکست خوردہ انسان دکھائی دے گا. انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا. عسکری شکست ہوئی, یعنی سر عسکری شکست ہو گئی, سفارتی محاذ پہ شکست ہو گئی, آپ کہہ رہے ہیں بدن بولی بھی ان کی نظر آ رہی ہے شکست خوردہ, لیکن وہ حد سے آگے بڑھ رہے ہیں اپنے بیانات میں. ظاہر ہے اس طرح سے پاکستان کے لوگوں, نوجوانوں کے بارے میں کہنا کہ میری گولی تو ہے ہی. ہاؤ ڈو وی پلان ٹو ڈیل ود دس؟ ہم نے کس طرح سے ٹیکل کرنا ہے؟ کیونکہ وہ جو ریڈ لائن تھی پہلے بھی کئی مرتبہ کراس ہوئی بھی ہے, لیکن اب تو حد ہی ہو گئی. دیکھیں عبداللہ, اس میں ایک دو باتیں میں گوش گزار کرنا چاہوں گا. یہ زبان تو بہرحال ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ گلی محلے کے جو اوباش لوگ ہوتے ہیں, وہ بھی ایسی زبان استعمال نہیں کرتے. کہاں یہ کہ 1.5 ارب انسانوں کے ملک کا جو سربراہ ہے وہ اس طرح کی زبان استعمال کرے, لیکن ہمارے ہاں اس طرح کی زبان استعمال نہیں ہو رہی ہے, اور نام کرنا چاہتے ہیں. ہم ایگریشن پہ یقین نہیں رکھتا. ہم ساری دنیا کے انسانوں کو زندہ رہنے کا حق دینا چاہتے ہیں, چاہے وہ بھارت کے ہیں, چاہے وہ کسی ملک کے بھی ہیں. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ روٹی کھاؤ اور روٹی نہیں کھاؤ گے تو میری گولی تمہارے سینے میں اترے گی. یہ زبان ہم استعمال نہیں کر رہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس طرح کے لوگوں کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتے, یا کرنا نہیں چاہتے, یا پہلو تہی کرنا چاہتے ہیں, یا ہم اپنی آنکھیں ایک طرف پھیرنا چاہتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. میں داد دیتا ہوں آپ لوگوں کی کہ آپ نے بڑی میچورٹی کے ساتھ, بڑی پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ بھارت کے جھوٹ کو, بھارت کے اس طرح کے عزائم کو بے نقاب کیا ہے, اور آپ نے ہمارے دفاعی مورچے کی ایک بڑی اہم جنگ لڑی ہے. اور جہاں تک پاکستان کی حکومت کا, پاکستان کی مسلح افواج کا تعلق ہے, وہ ان چیزوں پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ یہ شخص جو کچھ کہہ رہا ہے, جو کچھ بول رہا ہے, آگے بہار کے انتخابات آ رہے ہیں. ابھی آپ نے ان کے وزیر خارجہ کی بات سنوائی ہے, یشونت سنہا کی, کہ پلوامہ ہوا تو بھی انتخابات کا مسئلہ تھا, اڑی ہوا تو بھی انتخابات کا مسئلہ تھا. بھائی آپ اپنا جو بھی دھرم ہے آپ کا, اس کو
और हमसायों से ताल्लुकात को क्यों इस्तेमाल करते हैं अपने चुनाव के लिए? आप पहले भी शिकस्त खा चुके हैं, अब भी शायद शिकस्त खा जाए या चले जीत जाए, लेकिन किसी एक सूबे में 28 रियासतों में से एक रियासत के अंदर अगर इंतखाबात हो रहे हैं तो उसका मतलब थोड़ा ही है कि आप अपने पड़ोसी पे चढ़ दौड़ें और वहां की शिकस्त को फिर फतह में बदलें और फिर शायरी करें और फिर इस तरह के डायलॉग बोलें जो फिल्मों में बोले जाते हैं, गंडासा फिल्मों में बोले जाते हैं। तो इनका कोई असर होने वाला नहीं है। ये पस्ती की तरफ जा रहे हैं, ज़हनी पस्ती की तरफ जा रहे हैं और अपनी शिकस्त खुर्दा जो कैफियत है उसको मजीद पुख्ता करने चले जा रहे हैं। राइट। सेनेटर साहब, क्या चले हम बैठे इधर खित्ते में उनको भी समझते हैं, हम बात को समझ गए कि ये पस्ती की तरफ जा रहे हैं, क्या दुनिया ये स्टेटमेंट्स देख रही है? आर दे कनेक्टिंग द डॉट्स? पुलवामा में क्या हुआ तब भी इलेक्शंस का मसला था, उड़ी वाला तब भी इलेक्शंस का मसला था, अभी भी पहलगाम वाक़े के इर्द गिर्द उनका इलेक्शन, ये बड़ी टेलिंग चीज़ें हैं। वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग कि क्या दुनिया को नज़र आ रहा है कि कोई एविडेंस नहीं देते, कभी भी इन्होंने कोई एविडेंस नहीं दिया, वो चढ़ दौड़ते हैं पाकिस्तान के ऊपर। अब हम इंडिया की आवाम से क्या एक्सपेक्ट करें कि वो ये बात समझ सकेंगे कि नहीं? लेकिन दुनिया को ये बात समझ आ रही है, उनको नजर आ रही है। देखिए हुमा, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। मेरा ख्याल ये है कि इस दफा दुनिया को नजर आ रही है। ये जो रद्द अमल पहलगाम का आया है दुनिया में, वो उड़ी के वक्त नहीं आया था, वो पुलवामा के वक्त भी नहीं आया था और हमारा नैरेटिव जो था उसको मुस्तनद नहीं समझा गया था। लेकिन पहलगाम के बाद जो हमारा बयानिया सामने आया है और दुनिया ने भी देखा है कि बगैर किसी एविडेंस के एक शख्स जो है वो एक मुल्क पे 10 मिनट के अंदर अंदर FIR काट देता है और चढ़ दौड़ता है, उसके ऊपर हमला कर देता है। तो यही वजह है कि भारत बुरी तरह सफारती मैदान में भी बहुत पीछे रह गया है। उसको किसी एक मुल्क से भी अपने बयानिए की तायद नहीं मिली। दुनिया जान गई है कि भारत का पस मंजर क्या है और अब किन मसाइल से वो तो देखें ना, उसकी इकानमी का क्या हाल हो रहा है, उसके यहाँ सियासी दबाव उस पर बढ़ रहा है। इन सारी चीज़ों की वजह से मेरा ख्याल ये है कि फर्स्ट टाइम हमारे हिस्ट्री में दुनिया ने उसका साथ नहीं दिया। जंग में आप देखिए, आपके दोस्त सीना तान के आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे हैं, आपकी मदद की है, आपके हक में बयानात दिए हैं। नॉट ए सिंगल कंट्री फ्रॉम द वर्ल्ड, एक मुल्क ने उसके हक में कोई बयान नहीं दिया, उसके साथ बोला नहीं। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से वो समझते थे कि वो उठ खड़े होंगे और पाकिस्तान के खिलाफ हमारा सियासी और हर महाज पे सफारती साथ देंगे, वहां से कोई ऐसी आवाज नहीं उठी। तो ये शख्स जो है इसने बांझ करके रख दिया है अपने मुल्क को, सियासी सतह पे भी, सफारती सतह पे भी, और अस्करी सतह पे जो कुछ इसके साथ हुआ है अच्छा इसका तस्वुर नहीं किया जा सकता। भारतीय मीडिया की अभी हम बात कर रहे थे, अपने जो हमने बयानिया दिया और इब्तिदाइया दिया, उसमें बहुत सी बातें आपको पता है बेसरोपा करते हैं, लेकिन एक खबर वहाँ बहुत गर्दिश कर रही है कि चीन से हमारे पास J-35 तैयारे आने वाले हैं, जल्द आने वाले हैं। पाकिस्तान की तरफ से इसकी कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन या इसकी तरदीद नहीं आई है। कुछ आप इस बारे में हमें इनलाइटन कर सकते हैं? देखिए अब्दुल्ला, ये तो अब दिफाई मामलात हैं, मेरे इल्म में भी नहीं है, लेकिन जिस तरह के जारे मुल्क के साथ हमारी हमसायगी है और जिस तरह का उसका पास्ट है और जिस तरह अभी वो हमें धमकियां दे रहा है उठते बैठते गोलियां मारने की और हमारे सीने छलनी करने की, तो उसमें हमारा हक है कि हम अपनी दिफाई ज़रूरियात को पूरा करें। सर, एक और आखिरी सवाल है, सर्टनली इस पे तो हम मज़ीद मालूम करने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन कल हम अपनी कौमी सियासत की भी बात कर लें। कौम बड़ी मुत्तहिद है, पाक फौज के साथ खड़ी है, ज़ाहिर एक जंग जीती है। मुल्क में जिस तरह की डिविजन्स पहले नज़र आती थी, बड़ी गहरी लकीरें थीं, वो ज़रा मध्यम हुई हैं, ब्लर हुई हैं। लेकिन बहुत से लोग इस बारे में इस वक्त ये ओपिनियन रखते हैं कि अगर बानी PTI का मामला भी साथ ही सॉल्व हो जाए तो बेहतर होगा। कल अलीमा खान साहिबा का बयान भी आ गया कि हमसे क्या चाहिए, हम उस पर ऑनेस्टी के साथ अमल दरामद करेंगे। तो कोई पेशरफ्त वहाँ आपको होती हुई नज़र आ रही है? देखिए, ये मेरा ख्याल है कि एक ऐसा मौजू है अब्दुल्ला और उमा के इस पे हमें एक पूरी नशस्त करनी चाहिए। लेकिन जो ताज़ा तरीन बयानात कल आए हैं और उसमें कुछ लो और कुछ दो की बात चली है, इस मकाम तक उनका आना भी मेरा ख्याल है कि वो जान गए हैं कि हालात बदल गए हैं। और मैंने जो कल कहा था किसी जगह के एक न्यू नॉर्मल पाकिस्तान में जन्म ले चुका है और इस न्यू नॉर्मल के अंदर
जो बयानिया था पीटीआई का वो बिल्कुल पिट चुका है। अब न मुसल्लह अफवाज के खिलाफ उन्होंने कोई हर्जा सराई उनकी सुनी जानी है, न फील्ड मार्शल साहब के खिलाफ कोई हर्जा सराई सुनी जानी है, न पाकिस्तान गवर्नमेंट के बारे में वो बातें हो सकती हैं जो पहले हो रही थी। पाकिस्तान ने एक बड़ी फतह हासिल करने के बाद सियासी मंजरनामे को बदल दिया है। अब कुछ लो और कुछ दो के बारे में मैंने कल भी कहा था कि चलें देने को तो फौज उनको बहुत कुछ दे दे, हुकूमत उनको शायद बहुत कुछ दे दे, उनके पास देने के लिए क्या है? अब पीटीआई क्या देगी फौज को और पीटीआई क्या देगी हुकूमत को? पहले ये बताएं। चलें हमारी तरफ से तो हम ये रियायत दे दें, वो रियायत दे दें, मुकदमे वापस ले लें, उनके लिए जेल के फाटक खोल दें, उनको सियासत की सरगर्मियों में ले आएं, वो क्या देंगे जवाब में? ये तो बताए ना। जब लेन देन की बात करते हैं तो वो उनकी जेब में कौन सा सिक्का है जो वो सर एक सूबे में उनकी हुकूमत है, पॉपुलर हैं, वो जाहिर है पॉपुलर तो हैं। देखिए अब्दुल्ला, उनकी हुकूमत है, जमजम उनकी हुकूमत कायम रहे, उस हुकूमत से हमारा कोई ताल्लुक वास्ता इस हवाले से नहीं है कि वो हमारे लिए कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ठीक है, चल रहे हैं, वो ऊंच नीच होता रहता है, लेकिन मुझे ये बताइए कि उनके जेल के अंदर होते हुए उनके जो वीलॉगर्स दुनिया में उनके हमदर्द फैले हुए थे, उनकी सारी कोशिशों के बावजूद हम माशाल्लाह हमारी इकानमी ठीक हुई है। उन्होंने अपील की कि जी पैसे ना भेजो, हमारी तफसीलातें ज़्यादा हो गई हैं, IMF उनकी बातों में नहीं आया, हमारी इकानमी संभली है। उसके बाद लास्ट बात, उसके बाद हमने एक फौजी फतह हासिल की है उनके जेल में होते हुए। तो अब वो अगर बाहर आएंगे, मैं तो ये इस बयानिए पे यकीन ही नहीं रखता कि देयर इज एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल अनरेस्ट या कोई सियासी किस्म का हमारे यहाँ कोई बहरान है। नो बहरान एट ऑल, एवरीथिंग इज नॉर्मल, सारी चीजें ठीक चल रही हैं। वो कोई बहरान था भी अगर उनके जहन में तो वो टल चुका है। जी गुज़श्ता चंद हफ्ते में जो इवेंट्स हुए हैं उससे एक तबदीली तो आई है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सर।